Okay, Rushi, thanks a lot for the time you gave me for the introduction. Yes, sir. Thank you, sir. And also congratulations for hitting really big thing through GATE, that is Department of Management, IIT Madras, MS program in that. It is really great thing. Yes, sir. Okay. Thank you to your PDI team, sir. They helped very well. And you know what? This IIT Madras Department of Management is as good as NITI Bombay. Yes, sir. NITI Bombay का जो मास्टर्स प्रोग्राम है and ये डॉम्स का प्रोग्राम is at par. Only thing is you have to learn really nice there and you have to get it. Now, Rishi, let me ask you to tell us something about your credentials. And you know, this your interaction, this your information will motivate many of the students who have score similar to yours, CGPA similar to yours, but they have so far not got very good opportunity. It will motivate them also to keep pursuing for such opportunities. So you will share that what made you get selected into this, and first you please share your BTech, from where you did it, which branch, when did you complete your BTech, your CGPA, your GATE score, which branch you write your GATE with, and your category. These details. Yes, sir. Thank you, sir. My name is Rushikesh Bhimewar. I pursued my Bachelor of Engineering from GH Raisuri College of Engineering, Nagpur, with 9.3 CGPA in June 2019. My GATE score in GATE 2021 is 499. Category is OBC, and paper is Mechanical Engineering. As sir, I applied to the DOMS in both HTRA category and NHTRA category, but my interview is done through NHTRA category. But sir, I got selected in HTRA category. Okay, so ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया. आपने HTRA नॉन HTRA में दोनों में अप्लाई किया, लेकिन फाइनली उन्होंने आपको HTRA में सिलेक्ट किया. व्हाई इट इज सो? सर वो तो मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे दो अलग अलग फॉर्म थे, और जब मेरा इंटरव्यू था उससे में भी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि आपने दो फॉर्म भरे हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला था सर मेरा गेट स्कोर लो है, इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता. I remember you discussed with me also. I don't know, you discussed, somebody else discussed, and we decided कि non STR में ही भर दे, selection चाहिए हमें. And with God's blessing, I think you got it to STR only. Yes sir. That is even better. ऋषिकेश, बहुत से बच्चों को STR non STR को पता नहीं है. Can you tell us about that also? Sir, the only difference is that stipend. Stipend नहीं मिलेगा. Yes sir. बाकी पूरा सब कुछ सेम है, फीस उतनी रहेगी, बाकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी रहेगी. और ये सर मैंने जब इंटरव्यू हुआ था तो लास्ट में प्रोफेसर ने पूछा था आपको कुछ पूछने चाहते हो क्या, तो मैंने उनसे भी कंफर्म किया था कि डिफरेंस बिटवीन HTRA एंड NHTRA is up to only stipend now. तो उन्होंने क्या था, yes it is only up to stipend, all things are similar for both students. वो जो लिस्ट आपने शेयर किया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, मैं वो देख रहा था, उसमें नॉन STRA वाले बच्चे भी हैं क्या? नॉन STRA वाला उन्होंने दिया है डिटेल्स? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसमें सारा मिक्स है. नहीं सर, उसमें पूरे HTRA ही है. अच्छा, तो नॉन STR वाले भी लिए क्या उन्होंने? वो लिस्ट अलग होगा क्या सर? नहीं पता नहीं सर, मतलब जहां तक मुझे लगता है एक ही लिस्ट आई है, क्योंकि वेबसाइट पे भी एक ही लिस्ट है और उसी में सारे स्टूडेंट्स के नेम है. So you filled even with non HTRA, that means you were ready to pursue it without scholarship also. That means it was one of the your dream destination for you, Rushikesh. Am I right? Yes sir. मतलब जहां तक जैसे यूरोपीडिया से भी पता चला था, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था. जो आपने लास्ट ईयर इंटरेक्शन था तुलसी सर का, वो भी इंटरेक्शन मैंने देखा था, तो वहाँ मतलब पता चला था कि ये बहुत सही है. स्टाइपेंड भी अगर सर मतलब हम कैलकुलेट करते हैं 2.5 साल का कितना होता है, तो सर वो अराउंड 3 लाख ही होता है. तो मैं उतना में कंपेंसेट कर सकता था. घर की कोई इश्यू भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा कि भर देते हैं, 2 साल बाद तो हम कवर कर ही लेंगे. दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज रियली गुड. नहीं, ये तो दैट इज ट्रू कि डिपार्टमेंट इज रियली गुड. ऋषि, अच्छा ऋषि, अब आई एम कमिंग बैक. योर CGPA इज 9+ and 499 GATE score with mechanical OBC category. On the basis of this credential, आपको और कहाँ से कॉल आया था? सर मुझे MS मैकेनिकल IIT इंदौर से आया है, फिर MTech रूरल टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी, फिर MS एनर्जी साइंस IIT गुवाहाटी, PhD एनर्जी साइंस IIT गुवाहाटी, PhD डॉम्स IIT रुड़की, फिर MS ऑपरेशन रिसर्च IIT मद्रास, और सर MS मैकेनिकल IIT पलक्कड़. ओके, इन सब जगह से कॉल आपको आया? यस सर. अब ऋषि मेरे को ये बताओ, ये जो MS का कॉल आपको आया था IIT मद्रास से, तो what I have heard is that they ask you to tell some specialization and you told me, sir, I got selected in operations or something.
So Yeah. what specializations are there, and why Sir, why? there are sir five or six specializations: Okay. operations, marketing, entrepreneurship, information technology, and sir I think there is और एक है उसमें. So that means different branch students will go for this, right? यस सर, बट सर जो इंटरव्यू होता है वो प्योरली ऑपरेशन रिसर्च का ही इंटरव्यू होगा, और हमें उसमें एसओपी भी अपलोड करना था, तो एसओपी के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो Acha, do you think SOP is important for DOMS? Yes, sir. SOP is very much important because I know one student whose score is 445 general. He got shortlisted for the interview also. Okay, great. And his SOP is मतलब बहुत सही SOP था सर उसका. जैसे मतलब मेरा तो नॉर्मल ही था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नॉर्मल था, लेकिन उसका बहुत सही था. अच्छा, that's very good. So now Rushi, I come to your interview part. How it was, क्या क्या पूछा था उन्होंने, थोड़ा मेरे को बताओ आप, so that we get an idea how it was. सर इंटरव्यू मेरा 25th को था, 25th अप्रैल को. उन्होंने टाइमिंग दिए थे, उस टाइमिंग पे वो स्टार्ट भी हो गया था. 2 प्रोफेसर्स थे, और सर फर्स्ट प्रोफेसर ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया था. फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं. तो सर मैंने फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एमआरपी बताया था. तो उन्होंने फिर फोरकास्टिंग से स्टार्ट किया. फिर फोरकास्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग क्या होता है, फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग को एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ही क्यों बोलते हैं, उसमें उनको डेरिवेशन चाहिए था. तो मैंने आधा ही डिराइव किया था, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से. तो वो हुआ. उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग हम कहाँ यूज करते हैं. तो फिर वो हार्ट्स मेथड और विंटर हार्ट्स मेथड होती है, उसमें हम यूज करते हैं. तो सर एक्चुअली ये जो पार्ट था, ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एनपीटीएल पे उसी प्रोफेसर के लेक्चर्स देखे थे. तो सर मुझे वो आंसर्स पता थे, तो मेरा बहुत अच्छा गया इंटरव्यू. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सर वो प्रोफेसर थे, मैंने लेक्चर्स भी देखे थे, इसलिए वो इंटरव्यू ज्यादा स्मूथ हुआ मेरा. क्योंकि ज्यादातर डेरिवेशन भी जो था वो उन्हीं का था, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया उन्हें. और सर उसके बाद उन्होंने फिर इन्वेंट्री से पूछा कि वाइटल, वो वीआईटी एबीसी क्या होता है, एबीसी इन्वेंट्री क्या होती है, फिर वाइटल, डिफिशिएंट और इसेंशियल क्या होता है. फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया. उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि जैसे एक कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें ऐसा एग्जांपल बताओ जो ए कैटेगरी में और वाइटल में आता है और सी और वाइटल में आता है. तो मैंने ए और वाइटल के लिए इंजन बताया था, और सी और वाइटल के लिए मैंने टायर बोला था. लेकिन उन्होंने कहा तुम टायर की बजाय तुम एयर इन द टायर ऐसे भी बोल सकते हो. तो वो भी बहुत अच्छा गया. फिर उसके बाद दूसरे प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मुझे एसओपी के ऊपर पूछा था कि एसओपी क्या है, तुम क्या करना चाहते हो. वो मैंने एक्सप्लेन किया. फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो डोमेन लिया है उसमें डिफिकल्टीज क्या है. तो सर मैंने वो भी बताया, क्योंकि मैंने जो पहले ये दिया था स्नैप और मॉक दिया था, उसमें आपने भी ये क्वेश्चन पूछा था. तो वो दोनों क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर थे. मैंने टॉपिक मतलब पूरे उसके पॉइंट्स भी प्रिपेयर करके रखे थे. तो वो भी क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे से गया. फिर उन्होंने एक और पूछा था कि तुमने एचटीआर एनएचटीआर में दोनों ने भरा है, तो तुम अगर एनएचटीआर में सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम क्या एडमिशन लोगे क्या. तो मैंने कहा था यस सर, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स. तो सर इतना ही हुआ था. फिर उन्होंने पूछा आपको कोई पूछना है क्या, तो फिर मैंने पूछा था कि उसमें डिफरेंस क्या है. तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा. अच्छा ऋषि, अगर किसी स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर जिसका जनरल कैटेगरी है, 450 गेट स्कोर है और सीजीपी अच्छा है, 8.5 प्लस है, उसको डॉम्स में जाना हो, एमएस या एमटेक में जाना हो, हाउ ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ? सर एक तो सबसे फर्स्ट तो सर एसओपी अच्छा बनाना पड़ेगा, और सर रिस्क तो लेनी पड़ेगी और लेनी भी चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज की फीस है, तो कोई इश्यू नहीं है कि आप भर दो या नहीं भर दो, मतलब दोनों भर दो. अप्लाई तो करना पड़ेगा. अप्लाई तो आप कर ही सकते हो. अगर सर उन्हें अच्छा ठीक लगा एसओपी आपका, तो सर फिर सिलेक्शन हो भी सकता है. और सर मतलब शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो मतलब मुझे लगता है कि फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होता है. क्योंकि इस सर भी मैंने उसके लिए आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी ऐड किया कि जो वहां पे काम चल रहा है उससे रिलेटेड प्रोफेसर का एनपीटीएल पे वीडियोस भी देख लें. यस सर 2 प्रोफेसर्स के वहाँ के वीडियो है, मुझे भी मतलब नाम याद नहीं आ रहे उनके, लेकिन सर दोनों है. मतलब एनपीटीएल पे जो ओआर के लेक्चर्स है वो उन्हीं दोनों के हैं, और एक आईआईटी रुड़की के अग्रवाल सर है, उनके हैं. तो सर हम अगर उनके देखते भी है और 2 या 3 टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो सर हो जाएगा. और वो उतने ही टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, जैसे एक आध 2 क्वेश्चन वो पूछ लेंगे थोड़ा एडवांस, लेकिन वो उतने ही पूछेंगे. अगर वो मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर किया आपने तो हो जाएगा फिर. चलो ग्रेट. So Rushi, we come to an end of then this interaction.
And let Yes, me sir. again congratulate you. And I'm sure you must be a very happy man today. यस सर, थैंक यू सर। और सर मैं पूरी यूआरपीडी और आप और पूरी टीम का बहुत मतलब थैंक यू करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप ही के कारण ये डिपार्टमेंट पता चला, वरना पता भी नहीं था। और सर मैंने पूरे होप्स भी छोड़ दिए थे जब रिजल्ट लगा था कि यार क्या ही मिलेगा, आप छोड़ देते हैं। फिर आपको मतलब काउंसलिंग ज्वाइन करी, फिर वीडियोस देखे, तब लगा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल ही चलो, जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक फुल यूज ऑफ दिस डिपार्टमेंट नाउ। और इससे यस सर, बहुत यस अच्छा सर। करियर बन सकता है, जितना ज्यादा हो सके सीखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये जो भी नाम आ रहे हैं, ट्राई टू लर्न। IIT Madras is a center of excellence and this यस सर, department यस। is really good department. थैंक यू चलो, सर। all the best, Rishikesh.